Computers accounting is a business language. This is topic, and this session will be a little bit interactive. I will be asking question because I am not an expert or I am not from the outside, so student can be talk with me easily. Yes or no? But it is सावधान. Okay. We start with computers accounting is a business language, and we understand what is business. Okay. When you talk about the accounting, so commerce student know that what is accounting. And when we talk about the science student, that is different. Because when a question asked to the science student, 1 plus 1 is equal to answer is 2. But this same question asked to the commerce student says that 1 plus 1 is equal to whatever answer you want, that will be written with there. आपल्याला जे पाहिजे ते आन्सर आपल्याला त्या ठिकाणी मिळणार आहे हे कोण सांगतं फक्त कॉमर्स स्टुडंट. दॅट्स वाय कॉमर्स स्टुडंट आर ग्रेट. That's why commerce students are great, and commerce student can teach to others, because in the COVID-19 period, doctors are earning thousands, millions, billions, trillions rupees in the COVID-19 period. Some patient can die, some patient can, but they are earning more, but they don't know how to do the accounting, how to calculate the profit, and they getting the notice from ED, CBI, income tax. So that's why commerce student is great, because they come to us and we give solution how to make jol and how to do the all accounting things. So we are always great. So when you talk about the as a business language, I am saying that the accounting not only the business language, accounting is everything. Suppose three friends went to the eating pani puri, masala puri or chaat puri. That pani puri wala who is selling the pani puri, he is also doing his business. We not asking about that what is your education, but we are asking that 3 pani puri. After that we are paying 100 rupees and asking for sukhi puri. So he is doing his business, but the accounting process there also involved. It means the from smallest business or profession or anything to the bigger business, airline to the small pani puri wala, there is accounting required, because without money nothing. सब किस लिए करते हैं काम? पैसे के लिए. Why I am talking here? Because I am getting salary. I am employee of this institution. That's why I am dealing here. I am talking here. I am not talking in the choke or anything place which is really cost. So I am here talking because I am getting money. When we talk about the money, it means it's come to the transaction and it come to the accounting. That's why business is an language or accounting is an language of the business. Next, we understand manual accounting system and computer accounting system with this pictorial texture. See, previous era the accounting by the ledger, journal, in the books. A person who is recording accounting, he getting the notebook and pen, recording the entries. There are lots of papers. Right now we are using computerized Tally RP9 with GST. We have mobile phones. Suppose we went to the vendor, a fruit vendor or vegetable vendor, they have khata book in the mobile phone. They asking that, sir please 10 rupees for the previous one. ते मला विचारतात की पाठीमागच्या वेळेस तुम्ही कोथिंबीर दिली होती 10 रुपये दिले नव्हते. खाता book saying that. So Guru sir has 10 rupees pending and they asking me pay to 10 rupees. So accounting is a computerized. So when we use the technology terms, the manual accounting turn to the computerized accounting or technical things. Because one click we know what is profit, what is loss, how much we have asset, how much we have liabilities, and what is the financial position of the business or individual person. Individual person also have certain asset and liability. For example, you given your parents provide you pocket money 500 rupees, 1000 rupees 1 month, yearly, weekly. So you have also certain asset and liabilities, expenses and income. You have to expense for the birthday party to your friend. You have balance recharge. So you have certain expenses and incomes, certain asset and liability. So we understand how manual accounting system transfer to the computer system. Next, see, this person is who? Warren Buffett. Warren Buffett once said that getting 100 rupees from the one source is better. Getting the 100 rupees from the 100 source is better than the
गेटिंग 100 रुपीज फ्रॉम द वन सोर्स. मला एका ठिकाणावरून 100 रुपये मिळण्यापेक्षा 100 ठिकाणून 1 रुपये मिळाला, इट कॅन बी मल्टिपल. द रूल ऑफ द डिवायडेशन अँड मल्टिप्लिकेशन. सपोज वी सी द मूवी ऑफ द सलमान खान. डोंट से थँक यू. You say, without saying thank you, you have to help to the other person. I am saying that don't do division, do the multiplication, because it can be get multiple in numbers. So one purpose says that accounting is an language of the business because it serves as a communication system for financial information about the company or organization. So without financial position, we cannot get or cannot express the current situation or financial performance of the business. So it is an language of the business. Next, what is business? We take an example from the Pani Puri wala, Ratan Tata, Reliance, Patanjali. Give an example of the Patanjali. Who is the founder of the Patanjali? Who is founder of the Patanjali? Okay, so Ramdev Baba is a बिझनेसमॅन व गुरु बाबा. रामदेव बाबा हा बिझनेसमॅन आहे का बाबा आहे? बिझनेसमॅन, बिकॉज ही अर्न रेव्हेन्यू, ही गेट प्रॉफिट, ही सेल द प्रोडक्ट, ही हॅव कंपनी, ही हॅज अ डायरेक्टर, सीईओ, द एम्प्लॉईज, प्रॉफिट, लॉस, बॅलन्स शीट, asset, all these things. So it is an business. So business is an activity, any activity which is run by a person or group of person for earning money and getting profit in consideration of providing goods and services or to the society or customer. That is called as a business. Business can be anything. So we understand the basic concept, the various example, that is business. Next. So how we start business? We are talking about the current scenario, hands-on training, experimental learning. These words are very heavy. हे शब्द फार जड वाटतात आपल्याला. काय ट्रेनिंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग म्हणजे काय? So simple, when we use the practical knowledge फॉर द अर्निंग मनी. आय एम सेइंग दॅट. मी कॉमर्सच्या स्टुडंटला सांगत असतो की तुम्ही पैसे कमवायला शिकलं पाहिजे, फक्त डिग्री शिकली नाही पाहिजे. बीकॉम नाही झालं तरी चालते. वन ऑफ द माय स्टुडंट, एक विद्यार्थी बीकॉम फेल आहे पण बिझनेस आहे 5 ठिकाणी, आणि बीकॉम एमकॉम पास झाले विद्यार्थी, त्याचे 1000 एम्प्लॉई. नथिंग वरी अबाउट दॅट. सो सॉल्युशन इज दॅट यू हॅव टू स्किल अर्न मनी. पैसे कमवायला शिकलं पाहिजे. आणि ती जी आयडिया ती कशी येते? जनरेशन बाय द ब्रेन स्टोरिंग, बाय द एनिथिंग. बघा सगळ्यात जास्त स्मार्ट कोण असेल तर स्वतः असतो. कारण आरशात कोणाला पाहतो आपण? फक्त आरशामध्ये कोणाला पाहतो? असं कधी झालंय आरशासमोर उभा राहिला आणि दुसऱ्याला पाहतोय, त्याला दुसरीकडे जाऊन उभं राहावं लागतं. म्हणजेच तुम्ही आरशात स्वतःला पाहता, म्हणजे यू आर द ग्रेट पर्सन. आणि व्हेन यू टॉक अबाउट द आयडियाज अँड बिझनेस, वी कॅन सी द पिक्चर. सो वी कॅन डू द ब्रेन स्टॉर्मिंग अँड वी कॅन इनोव्हेटिव्ह क्रिएटिव्ह माइंड. नेक्स्ट, take this example. Without heart human cannot be alive. Understand? Without heart human cannot be. आपण सर्व जगू शकतो का आपल्यातलं हृदय बाजूला काढून ठेवलं तर? हृदय आहे का सर्वांना? चेक इट. काही मुलांनी चेक केलं. म्हणजे विदाउट हार्ट वी कॅन नॉट. आपण जगू शकत नाही हृदयाशिवाय. तसं विदाउट बिझनेस, विदाउट accounting there is no business. I am finally saying that without accounting nothing. Accounting नसेल तर काहीच नाही. फ्रॉम बर्थ टू डेट, म्हणजे जन्म झाला तरी त्या बाळाचं नाव ठेवावं लागतं, बरोबर? खर्च येतो. आणि मृत्यू झाला तरी त्याची काय करावं लागते? अंत्यत्र डेट झाली तरी खर्च येतो. येतो का नाही? म्हणजे फ्रॉम बर्थ टू डेट वी हॅव एक्सपेन्सेस, रेव्हेन्यू, इन्कम, मनी, पैसा, प्रॉफिट, लॉस. It will include in the accounting. So likewise without heart there is no human being. Without accounting there is no business. Keep in mind, if you want to do business, you want to become a billionaire, trainer or expert businessman, you have to understand the accounting. And once you understand the accounting, once you get skill about the accounting, you can be successful businessman, successful entrepreneur, no doubt at all. So we understand that the importance of the accounting. Next, so in accounting what are the terms we learn? All that is given here. Overhead, no credit, debit, asset, liability,
money, etc. So accounting is nothing. It is a game of the certain words. It is a game of the asset and liability, income, expenditure. In any business, we have only four things. They have certain asset and liability. They have certain income and expenses. They have only two things, profit or loss. छापा काटा केला तर एकतर छापा होईल किंवा काटा होईल. याच्या व्यतिरिक्त जगात जर्मनी भारतात कुठे जरी काय होणार आहे, एवढ्याच गोष्टी असणार आहेत. And that is a game plan who is make strategy. It is called as a accountant, or it is called as a commerce student. That's why I am saying that the commerce student is always great. आणि त्यामुळे कॉमर्स स्टुडंटची कॉलर सुद्धा कसली पाहिजे, टाईट पाहिजे. त्यामुळे वी आर ऑलवेज इम्प्रेसिंग दॅट वी आर ऑलवेज ग्रेट फ्रॉम द अदर्स. आय एम नॉट डिलिव्हिंग lecture for the long period. Next, we will understand this concept with the pictorial or the short movie or bibliography of the movie. एक मूवी 3 तासाचा असतो, आपल्याला 15 मिनिटात मूवी पाहणं शक्य नाहीये. But the accountant of the world who solve in the second. Suppose any politician get notice from the ED or any big businessman get notice from the income tax, that solution given by only accountant or commerce student or chartered accountant, anything who has skill or knowledge about the accounting field, he can solve that. So I am not delivering lecture likewise in the class, but we see the short film of the 15 minutes. Those students carefully listen the words, they understand what is accounting, how can we make our life successful with the only one word, that is account. So we all of you are ready to watch this short film or movie? सगळे तयार आहेत का, पाहणार आहेत का? ठीक आहे, मोबाईल पण तुमचा बंद ठेवा. आपण 15 मिनिटाची शॉर्ट फिल्म का पाहू आणि त्यानंतर अनालिसिस करा. दोज आर गेटिंग अंडरस्टँडिंग, दॅट इज गुड. दो आर नॉट अंडरस्टँडिंग, दॅट इज ऑल्सो व्हेरी गुड. ओके, लेट्स सी द शॉर्ट फिल्म which is accountant of the world who solve in second. विवेक आप गए नहीं सर? वो बेटी का टूर्नामेंट था ना आज. Second number and he chooses third. केयरफुली बसायचे, बेटे बेटे सावधान. वेलकम डियर रॉकेट्स. आज हम आपके लिए एक ऐसी मूवी लेकर आए हैं जिसका स्टोरी प्लॉट आखिर तक आपको सरप्राइज करता रहेगा. मूवी का नाम है द अकाउंटेंट. पानी वानी पीना हो तो पी लीजिए, क्योंकि एक बार कहानी शुरू हो गई तो आप एंड तक अपनी जगह से हिल नहीं पाएंगे. मूवी की शुरुआत में एक FBI एजेंट को दिखाते हैं जो एक खतरनाक गैंग पर जासूसी कर रहा है. तभी अचानक एक आदमी उस गैंग के सभी लोगों को शूट करने लगता है. अब आवाज को सुनकर FBI एजेंट गन तान कर अंदर जाता है तो हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी होती है. शूटर का चेहरा नहीं दिखाया जाता, लेकिन वो FBI एजेंट पर गन तान देता है. और यहाँ पर मूवी का टाइटल द अकाउंटेंट डालकर होती है मूवी शुरू. कौन है ये FBI एजेंट और ये शूटर कौन है जिसने इस पूरी गैंग को मार डाला, और अब FBI एजेंट को मारने ये क्यों जा रहा है, ये जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा. ये है हमारा हीरो क्रिस. ये एक ऑटिस्टिक बच्चा है, यानी कि इसका ब्रेन दूसरों से अलग तरीके से काम करता है. ये किसी के साथ आई कांटेक्ट नहीं रखता और ना ही किसी से ठीक ठीक बात करता है. आम लोगों की भाषा इसे कंफ्यूज कर देती है, लेकिन ये मैथ्स, कैलकुलेशन और पजल सॉल्विंग में बिल्कुल माहिर है. क्रिस के पापा एक आर्मी जनरल है. वो किसी तरह अपने बेटे को एक आर्मी ऑफिसर बनाना चाहते हैं, इसलिए क्रिस के पेरेंट्स उसे एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं. क्रिस का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम ब्रेंडन है. ये नॉर्मल बच्चा है. न्यूरोलॉजिस्ट बताता है कि ऑटिज्म का कोई क्योर नहीं है, लेकिन अगर आप इसके स्पेशल टैलेंट्स को प्रोत्साहित करेंगे तो ये लाइफ में बहुत आगे जाएगा. तभी क्रिस चिल्लाता है क्योंकि उसके पजल का एक पीस नहीं मिल रहा होता है. क्रिस की खासियत यह है कि अगर वो कुछ कर रहा है तो उसे पूरा किए बिना उसको चैन नहीं आता. वो परेशान है कि एक पीस गया कहाँ. हॉस्पिटल में एक और ऑटिस्टिक लड़की होती है जो उसको मिसिंग पीस उठा कर देती है. तब जाकर क्रिस शांत होता है. ये ऐसा जीनियस है कि पजल को उल्टा रखकर बड़ी आसानी से सॉल्व कर देता है. क्रिस की माँ उसको यहीं छोड़कर जाना चाहती है, लेकिन उसके पापा नहीं मानते और क्रिस को नॉर्मल होने की ट्रेनिंग देना चाहते हैं. 20-25 साल बाद दिखाते हैं कि क्रिस अब एक छोटा अकाउंटिंग फर्म चलाता है. अब एक कपल को दिखाते हैं जिनका घर जब्त होने जा रहा था. उन्होंने क्रिस से मदद मांगी थी. क्रिस प्रॉपर्टी डीलिंग और कानून के सारे लूप होल्स को जानता है और उनकी प्रॉपर्टी को जब्त होने से बचा भी देता है. अगले शॉट में FBI हेडक्वार्टर्स को दिखाते हैं जहां ट्रेजरी डायरेक्टर रेमंड अपने डाटा एनालिस्ट को बुलाता है. इसका नाम है मडीना. दरअसल मडीना ने छोटी उम्र में एक कत्ल किया था और उसकी सजा भी भुगत चुकी है, लेकिन उसने FBI से ये बात छुपाई और यहाँ जॉब कर ली है. और अगर ये बात सभी को पता चल गई तो उसकी नौकरी जाएगी और उसे जेल भी हो सकती है. लेकिन रेमंड कहता है कि अगर तुम मेरा एक काम करोगी तो मैं तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड मिटा दूंगा. यहाँ वो बुजुर्ग कपल बहुत खुश है कि क्रिस ने उनका घर बचा लिया. बदले में वो क्रिस को अपना फार्म यूज करने
करने की परमिशन दे देते हैं। यहाँ रेमंड मडीना को कुछ फोटोज दिखाता है। ये बड़े बड़े गैंगस्टर्स, इंटरनेशनल स्मगलर्स और टेररिस्ट हैं। इनके साथ जो आदमी खड़ा है तुम्हें पता लगाना है कि वो कौन है, और वो भी एक हफ्ते के अंदर। मडीना देखती है कि एक भी फोटो में उस आदमी का चेहरा नहीं दिखता। इतना शातिर है अपना हीरो। क्रिस नॉर्मल दिखता है, लेकिन बचपन की यादें अभी भी उसके दिमाग पर छाई हुई है। उसके ऑटिज्म की वजह से उसकी माँ उसके पापा को छोड़कर चली गई। इस बात से क्रिस को गहरा सदमा पहुंचा और वो अपने दिल का दर्द भुलाने के लिए अपने शरीर को घायल कर देता था। इतने साल बाद भी उसे वो सारे दर्द याद है। अगले दिन वो उस बुजुर्ग कपल के फार्म में शूटिंग प्रैक्टिस करता है। उसके शूटिंग स्किल्स को देखकर वो कपल तो दंग रह जाते हैं। फिर क्रिस एक गैरेज में जाता है जहाँ उसकी अपनी एक एक्सपेंसिव कैरवेन है। उसके अंदर तरह तरह की गन्स, बॉम्ब्स, बहुत सारा कैश वगैरह पड़ा होता है। वहाँ क्रिस की पसंद की कई पुरानी और वैल्यूएबल पेंटिंग्स भी होती हैं, जिनका दाम 100 करोड़ से कम नहीं होगा। क्रिस याद करता है कि वो जेल में था और वहाँ पर गोल्डी नाम के अकाउंटेंट से मिला था। क्रिस वैसे नॉर्मली किसी से बात नहीं करता, लेकिन गोल्डी को अपने पापा की तरह मानने लगा था। वो गोल्डी भी क्रिस की तरह कई स्मगलर्स और गैंगस्टर्स का अकाउंटेंट था। उसे उनके इलीगल कैसीनोज, बैटिंग क्लब्स, इन सब की जानकारी थी। इस वजह से पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया और अब वो जेल में है। यहाँ पुलिस के टॉर्चर की वजह से गोल्डी ने अपने क्लाइंट्स की इलीगल बिजनेस वगैरह की पूरी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे दी। उसकी टिप की मदद से एफबीआई ने एक स्मगलिंग गैंग को 6 महीने फॉलो करके उनकी इलीगल एक्टिविटीज का पता लगाया। और अब प्रेजेंट में क्रिस अपने कैरवेन में बैठकर एक नए क्लाइंट की तलाश कर रहा होता है। तभी उसकी नजर लामर नाम के एक आदमी पर पड़ती है, जो लिविंग रोबोट्स नाम की कंपनी का सीईओ है। ये कंपनी रोबोटिक हाथ पैर वगैरह बनाती है, जिसे ह्यूमंस नॉर्मल हाथ पैर की तरह यूज कर सकते हैं। एक छोटे लैब में शुरू करके आज ये कंपनी जरा बड़ी हो गई, लेकिन लामर अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को शेयर मार्केट में एंटर करवाना चाहता है ताकि और बड़े लेवल पर तरक्की करे। अब क्रिस को पता चलता है कि इस वक्त लिविंग रोबोट्स एक अच्छे अकाउंटेंट की तलाश कर रही है, जो उनकी कंपनी के अकाउंटेंट्स को ऑडिट कर सके। क्रिस लिविंग रोबोट्स के ओनर से मिलने जाता है, लेकिन वहाँ पर लामर की बहन होती है, जो इस कंपनी में पार्टनर है। इसका नाम है रीता। उसके साथ कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि सीएफओ भी मौजूद होता है। रीता बताती है कि हमारे एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी के अकाउंट्स में लगभग 200 करोड़ का घोटाला हुआ है। इस घोटाले के होते हम पब्लिक को शेयर नहीं बेच सकते। क्रिस कहता है कि एक हफ्ते के अंदर मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। और इससे रीता इंप्रेस होकर कहती है, तुम 10 दिन भी ले लो, लेकिन ये प्रूव करके दिखाओ कि इतनी बड़ी रकम कैसे गायब हो गई और ये घोटाला किसने किया। लेकिन सीएफओ भड़क जाता है, क्योंकि पिछले 15 साल से वही कंपनी के अकाउंट्स को देख रहा था। लेकिन अब रीता उसी पर शक कर रही होती है। यहाँ मडीना रेमंड की दी हुई फोटोज को अपने डाटाबेस से वेरीफाई करती है। उसके पास एक स्मगलिंग गैंग के ऑडियो रिकॉर्ड्स होते हैं। जब एफबीआई किसी गैंग पर स्पाई करता है तो उस गैंग के सीक्रेट हेडक्वार्टर्स में घुसकर माइक्रोफोन्स, कैमरा वगैरह सीक्रेटली फिक्स कर देते हैं। अब मडीना उन वीडियोस फुटेज को देखती है और रिकॉर्डिंग को भी सुनती है। शुरुआत में एक एफबीआई एजेंट को एक गैंग पर स्पाई करते हुए दिखाया गया था। तभी एक आदमी ने पूरे गैंग को शूट कर दिया और एफबीआई एजेंट पर गन तानकर खड़ा हो गया। उन दोनों के बीच क्या बात हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग भी मडीना के पास होती है। अब मडीना क्रिस की साइड और बैक एंगल की फोटोज को अपने कलीग को भेजती है और उससे मैच होने वाले फेसेस को डाटाबेस में चेक करने को कहती है। हालांकि किसी भी फोटो में क्रिस का पूरा चेहरा नहीं दिखता। यहाँ क्रिस लिविंग रोबोट्स के सीईओ लामर से मिलता है, लेकिन लामर कहता है, मुझे अपने सीएफओ पर पूरा विश्वास है, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। लेकिन रीटा चाहती है कि तुम अकाउंट्स को चेक करो, इसलिए मैं परमिशन दे रहा हूँ। अगले सीन में एक हिटमैन यानी प्रोफेशनल किलर को दिखाते हैं। वो एक फेमस स्टॉक ब्रोकर से मिलता है। ये शेयर मार्केट को घोल कर पी चुका है, मतलब ये जो कहता है उसी के मुताबिक शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होता है। हाल ही में इसने लिविंग रोबोट्स के बारे में कुछ गलत कह दिया, जिससे कंपनी की स्टॉक वैल्यू बहुत कम हो गई और इससे चिढ़कर लिविंग रोबोट्स कंपनी ने इस हिटमैन को हायर किया है। हिटमैन स्टॉक ब्रोकर को खूब पीटता है और वार्न करता है कि आइंदा लिविंग रोबोट्स के बारे में कुछ लिखा तो मार डालूंगा। अगले दिन क्रिस लिविंग रोबोट्स के पिछले 15 साल के अकाउंट्स को चेक करने जाता है। उसकी मदद के लिए कंपनी ने अपनी अकाउंटेंट डियाना को भी भेजा है, लेकिन वो रात भर फाइल तैयार करके बेचारी यहीं सो गई। क्रिस उसे जाकर आराम करने को कहता है। अब रेमंड को दिखाते हैं तो वो प्रेस मीट में होता है। वो कुछ ही दिनों में रिटायर होने वाला है। उसने अपने करियर में कई सक्सेसफुल मिशन पूरे किए हैं। फिर प्रेस वाले उसकी कामयाबी का रहस्य पूछते हैं तो वो बताता है कि मैं अकेला कुछ नहीं करता, ये एक टीम एफर्ट है। सभी जानते हैं कि रेमंड ने निचली रैंक से अपना करियर शुरू किया था और अपनी काबिलियत के बल पर ट्रेजरी डायरेक्टर बन चुका है। मडीना का कलीग कॉल करके बताता है कि हमें कुछ साल पहले एक शूट आउट का वीडियो मिला है। उस वीडियो में जिस शूटर ने गैंग के 15 आदमियों को मार डाला उसका फेस तुम्हारी दी हुई फोटोज से मैच करता है। इतना ही नहीं, वीडियो के साथ ऑडियो भी होती है जिसमें एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। मडीना कहती है कि बैकग्राउंड नॉइस को जरा फिल्टर करके मुझे भेज दो। यहाँ क्रिस को दिखाते हैं जो लिविंग रोबोट्स में लंच करता है और डियाना से बातें भी करता है। लंच के बाद क्रिस ढेर सारे मार्कर्स, राइटिंग बोर्ड्स के साथ एकदम युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। वो नंबर्स और कैलकुलेशन के मामले में इतना तेज है कि एक बार फाइल को देख लिया तो उसके दिमाग में सब कुछ रजिस्टर हो जाता है। उसका दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज चलता है। 15 साल के अकाउंट को वो एक ही रात में बोर्ड पर उतार देता है। मार्कर्स लगभग खत्म हो चुके हैं।
उस रात मडीना बड़े ध्यान से उस शूट आउट साइट की रिकॉर्डिंग्स को सुनती है। फुल वॉल्यूम में उसे एक डरावनी आवाज में नर्सरी राइम्स सुनाई पड़ती है। इतने लोगों को शूट करने वाला आदमी बचपन का राइम्स क्यों गाने लगा? अब मडीना गैस करती है कि जरूर इस आदमी का दिमाग नॉर्मल नहीं है। दूसरी ओर क्रिस सारे रिकॉर्ड्स को चेक करके पता लगाता है कि एग्जैक्टली $61 मिलियन का घोटाला हुआ है। खर्च के नाम पर ये पैसे कंपनी से बाहर गए हैं, लेकिन ऐसा कोई खर्च कंपनी के रिकॉर्ड्स में नहीं है। इतनी मोटी रकम एक फेक कंपनी के नाम की गई है। सुबह रीता आकर पूछते है कि तुम किसी नतीजे पर पहुंचे भी हो या यूं ही मेरे विंडोज और डोर्स तुमने गंदे कर दिए। क्रिस कहता है कि $61 मिलियन गायब हुए हैं। रीता पूछती है तो चोर कौन है? क्रिस कहता है कि CFO के अलावा और कौन हो सकता है। रीता अब एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करने को कहती है। वहाँ CFO के घर पर रातों रात वही हिटमैन पहुंच जाता है। वो CFO को धमकाता है कि लिविंग रोबोट्स का नमक खाकर तुमने उसी में छेद कर दिया। अगर मैं तुम्हें शूट करूंगा तो तुम्हारी पत्नी नीचे आएगी, फिर उसे भी शूट करना पड़ेगा। इसीलिए तुम हमेशा जो इंसुलिन इंजेक्शन लेते हो आज उसका ओवरडोज लेकर मर जाओ। किसी को शक भी नहीं होगा और तुम्हारी पत्नी को इंश्योरेंस के पैसे भी मिल जाएंगे, वरना तो पुलिस केस होगा और तुम्हारा परिवार सड़क पे आ जाएगा। अब और कोई रास्ता न पाकर CFO इंसुलिन का ओवरडोज लेकर मर जाता है। अगले दिन क्रिस लिविंग रोबोट्स पहुंचता है तो वे उसके सारे कैलकुलेशन मिटा रहे होते हैं। CEO लामर कहता है कि मुझे 61 मिलियन की फिक्र नहीं है, पर बदनामी के डर से मेरे दोस्त ने खुदकुशी कर ली। वो 15 साल से मेरी कंपनी का CFO था। तुम अपना पेमेंट लेकर चले जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये कहकर लामर चला जाता है। लेकिन क्रिस को तो आप जानते ही हैं, वो जो काम शुरू करता है उसे खत्म किए बिना उसको नींद कहाँ आती है। वो घर जाकर भी इस अकाउंट्स फ्रॉड के बारे में सोचता रहता है। फिर उस फार्म में जाकर शूटिंग प्रैक्टिस करता है। तभी उसे याद आता है कि उसके पापा ने उसे और उसके भाई ब्रैंडन को मार्शल आर्ट्स फाइटिंग वगैरह में ट्रेन किया था। फार्म हाउस में 2 हिटमैन उस बुजुर्ग कपल को गन पॉइंट पर धमकाते हैं कि उस आदमी को अंदर बुलाओ। वो औरत रोती भी क्रिस को अंदर बुलाती है। अचानक एक बुलेट हिटमैन को घायल कर देता है। दूसरा हिटमैन तो चौंक जाता है कि ये अकाउंटेंट है या फिर फाइटर, इतनी दूर से शूट कैसे कर पाया। अब वो कपल को कार के अंदर बैठाकर कार चलाने को कहता है। क्रिस कार को चेज करता हुआ जल्दी कार के पीछे हिटमैन को बाहर खींच देता है। फिर उसकी धुलाई करके पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा, लेकिन हिटमैन विनती करता है कि मैं किसी का नाम नहीं जानता, तुम्हें और इस लड़की को मारने के लिए हमारी गैंग को पैसे दे गए थे। ये कहकर वो डियाना का फोटो देखता है, यानी वे डियाना को भी मारने वाले हैं। अब क्रिस समझ जाता है कि लिविंग रोबोटिक्स का टॉप ऑफिशियल मुझे और डियाना को खत्म करना चाहता है, क्योंकि हम अकाउंट्स फ्रॉड के बारे में जान चुके हैं। क्रिस डियाना को बचाने के लिए निकल पड़ता है। तभी उसकी पार्टनर कॉल करके कहती है कि तुम एक लड़की को बचाने के लिए रिस्क क्यों लेना चाहते हो, हमेशा की तरह अपना सामान बटोरकर दूसरे शहर चले जाओ। लेकिन क्रिस नहीं चाहता कि उसकी वजह से एक इनोसेंट लड़की मारी जाए। इससे पहले कि उस गैंग के हिटमैन डियाना को कुछ करते, क्रिस उनसे खूब लड़ता है। शानदार फाइट होती है और सबको मार गिराकर क्रिस डियाना को लेकर अपने कैरवन के पास आ जाता है। वो डियाना को अंदर चढ़ने से मना करता है और खुद अंदर जाता है, लेकिन डियाना से रहा नहीं जाता और वो भी अंदर जाती है। वहाँ गोल्ड बिस्किट्स, ढेर सारे कैश, गन्स, बॉम्ब्स, कॉस्टली पेंटिंग्स, ये सारी चीजें होती है और इनको देखकर डियाना शॉक। आप गैंगस्टर्स के अकाउंट्स हो या खुद गैंगस्टर हो? फिर वो एक पेंटिंग को देखती है जो एक फेमस आर्टिस्ट ने बनाई थी। इसकी आज की कीमत 400 करोड़ है। ये डुप्लीकेट है क्या? तुमने ये कहाँ से चुराया? क्रिस बताता है कि नहीं, ये ओरिजिनल है। मेरे क्लाइंट ने मेरी फीस के बदले मुझे पेंटिंग दे दी। फीस के बदले 400 करोड़ की पेंटिंग कौन देता है? क्या तुम्हारा क्लाइंट भगवान है? ये सब सोचकर डियाना को तो चक्कर ही आने लग जाते हैं। दूसरी ओर मडीना पता लगा लेती है कि क्रिस बचपन में एक ऑटिस्टिक बच्चा था, लेकिन वो बहुत ही इंटेलिजेंट था और नंबर्स का खिलाड़ी भी था। तो अब वो जरूर नंबर से जुड़े हुए कोई प्रोफेशन में होगा, जैसे कि अकाउंटेंट, ऑडिटर, इन सब चीजों में से कोई एक। अब मडीना और उसका कलीग टॉप 1000 अकाउंटेंट्स की लिस्ट निकालते हैं जिनका एनुअल इनकम 1 मिलियन या उससे ज्यादा हो और जो बचपन में ऑटिज्म से पीड़ित भी था, लेकिन उन्हें कोई मैच नहीं मिलता। फिर अपना लेवल कम करके $5 लाख इनकम वाले अकाउंटेंट्स की वो लिस्ट चेक करते हैं। इस ग्रुप में 2500 अकाउंटेंट्स होते हैं, जिसमें वे क्रिस की उम्र, ऑटिज्म वगैरह की डिटेल्स को मैच करने की पूरी कोशिश करते हैं। क्रिस और डियाना एक होटल रूम में छुपे होते हैं। ये जान गए हैं कि लिविंग रोबोटिक्स ने 61 मिलियन का खर्च दिखाया था, लेकिन वो पैसे एक फेक कंपनी के नाम किए गए थे। लेकिन इससे CFO को क्या फायदा होने वाला था? और तभी एक डरावना सच रिवील होता है। दरअसल CFO ने घोटाला नहीं किया था। इस घोटाले से सिर्फ लिविंग रोबोटिक्स के ओनर्स यानी CEO लामर और रीता को फायदा हो सकता था। उनका प्लान ये था कि पहले वे इस मोटी रकम को खर्च के तौर पर उस फेक कंपनी को ट्रांसफर करेंगे और जब शेयर मार्केट में एंटर करने का टाइम आएगा तो इस रकम को वे वापस लिविंग रोबोटिक्स में ट्रांसफर कर लेंगे। ऐसा लगेगा कि कुछ समय में उन्हें इतना ज्यादा मुनाफा हुआ है और वे अपनी कंपनी के शेयर्स पब्लिक को बेच पाएंगे। $7 का शेयर 70 में बिकेगा। अब क्लियर हो गया है कि ये घोटाला रीता या लामर ने किया है। क्रिस रीता से मिलने जाता है, लेकिन उसे किसी ने शूट कर दिया था। क्रिस
खूनी को पीछे से देखकर उसे चेस करता है, पर वो बच जाता है। यहाँ मडीना और उसका साथी 2500 में से 4 ऐसे अकाउंटिंग फर्म्स को ढूंढ निकालते हैं जिनके नाम बड़े अजीब होते हैं। उन कंपनीज को 4 फेमस मैथमेटिशियन के नाम दिए गए हैं, लेकिन चारों फर्म्स का ओनर क्रिस है। बड़े बड़े गैंगस्टर्स, स्मगलर्स, खतरनाक बिजनेसमैन, ये सब क्रिस के क्लाइंट्स हैं और क्रिस कई मिलियंस कमाता है, लेकिन इनकम टैक्स में सिर्फ $5 लाख दिखाता है। उसके ऐसे ऐसे कारनामे सुनकर मडीना का तो सर ही फिर जाता है। उसे ये भी पता चलता है कि वो अपने इनकम का 90% एक हॉस्पिटल को डोनेट करता है। इस वजह से उसकी इनकम इतनी कम है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी उस पर शक नहीं करता। इन चारों कंपनीज के ओनर की फोटो इनके फोटो से बिल्कुल मैच करती है। अगले दिन मडीना रेमंड को क्रिस की सारी डिटेल्स दे देती है और बताती है कि यही है वो अकाउंटेंट जिसकी आपको तलाश है। यहाँ क्रिस डियाना को होटल रूम में छोड़कर चला जाता है क्योंकि अब डियाना की जान को खतरा नहीं है। FBI टीम क्रिस के घर जाकर रेड करती है। क्रिस ने घर की हर चीज के अंदर कैमरा और मोशन सेंसर सेट किया होता है। घर के पीछे 10 कैमरास होते हैं, मतलब वो हर वक्त हर तरफ से उनको वॉच करता रहता है। लेकिन आगे की तरफ एक भी कैमरा नहीं होता क्योंकि वहाँ उसने एक बड़ा मशीन गन सेट करके रखा हुआ है। कोई उसे पकड़ने आएगा तो वो गन से उन्हें उड़ा देगा। FBI वाले चौंक जाते हैं कि कौन है ये शातिर अकाउंटेंट जो हमें ठेंगा दिखा रहा है। यहाँ लामर के घर पर उस हिटमैन का गैंग उसे प्रोटेक्शन दे रहा होता है। दरअसल लामर ने ही कंपनी के अकाउंटेंट से $61 मिलियन निकालकर एक फेक कंपनी के नाम कर दिए थे। अब वो उन पैसों को वापस लिविंग रोबोटिक्स के अकाउंट में लाकर अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में एंटर करवाना चाहता है। यहाँ मडीना रेमंड से कहती है कि अब तो मैंने आपका काम कर दिया, आप प्लीज मेरे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को मिटा दीजिए। रेमंड पूछता है कि तुमने किसका खून किया और क्यों किया। तब मडीना बताती है कि उसकी बहन ड्रग एडिक्ट थी और एक ब्रोकर उसे ड्रग्स लाकर देता था। उसने मेरी बहन का फायदा उठाना चाहा, इसलिए मुझे उसका खून करना पड़ा। ये सुनकर रेमंड अपना सच रिवील करता है। मूवी की शुरुआत में जो FBI एजेंट उस गैंग पर नजर रख के बैठा हुआ था वो रेमंड ही था और उन गैंगस्टर्स को शूट करने वाला और कोई नहीं, क्रिस था। क्रिस ने 15 आदमियों को शूट कर दिया, लेकिन रेमंड के सर पर गन रखकर सिर्फ एक सवाल किया था कि क्या तुम एक अच्छे बाप हो। रेमंड ने उसे बताया कि मेरे 2 बच्चे हैं और मैं एक अच्छा बाप हूँ, प्लीज मुझे शूट मत करो। इतना ही नहीं, गोल्डी जिसे क्रिस अपने पापा की तरह मानता था वो एक अप्रूवर बन गया और अपने गैंगस्टर क्लाइंट की डिटेल्स उसने पुलिस को दे दी थी और उसे करने का काम रेमंड को दिया गया था। अप्रूवर होने की वजह से गोल्डी की सजा कम कर दी गई, लेकिन जब वो बाहर निकला तो लिविंग रोबोटिक्स के हिटमैन गैंग ने उसे किडनैप कर लिया और उसके हाथ पैर आंखें सब नोचकर उसको टॉर्चर किया और आखिर में उसे मार डाला। रेमंड बहुत गिल्टी फील करता था कि मैं गोल्डी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, इसलिए उसने हिटमैन से बदला लेने के लिए 6 महीने हिटमैन गैंग को फॉलो किया और उन सभी को मार डालना चाहता था। लेकिन इसी बीच क्रिस को भी पता चल गया कि गोल्डी को हिटमैन गैंग ने मारा है, इसलिए उसने 15 के 15 गैंग मेंबर्स को खत्म कर दिया। लेकिन उसने रेमंड को शूट नहीं किया क्योंकि वो जान गया था कि वो भी गोल्डी का मौत का बदला लेने के लिए आया हुआ है। अपनी नाकाबिले से तंग आकर रेमंड अपना रिजाइनेशन देने जा रहा था, लेकिन तभी उसे क्रिस की पार्टनर ने कॉल किया। ये वही औरत है जो क्रिस से सिर्फ फोन पर बात करती है। उसने रेमंड से कहा था कि जल्दबाजी में रिजाइन मत कीजिए, मैंने और क्रिस ने फैसला किया है कि हम आपको क्लाइंट्स यानी खतरनाक इंटरनेशनल स्मगलर्स, गैंगस्टर्स, इन सब की टिप देंगे। इस तरह आप अपने मिशन में सक्सेसफुल होंगे। इस प्लान के मुताबिक क्रिस गैंगस्टर्स का काम करके उनसे मोटी रकम लेता था, लेकिन अपने पार्टनर के जरिए उनके धंधों और स्मगलिंग वगैरह की टिप रेमंड को भी देता था। उसने रेमंड को ऐसे कई टिप्स दिए और रेमंड ने उन गैंगस्टर को पकड़कर लगातार प्रमोशन प्राप्त की और ट्रेजरी का डायरेक्टर बन गया। लेकिन रिटायर होने से पहले वो जानना चाहता था कि वो भला आदमी कौन है जिसकी वजह से उसको ये पोजीशन मिली, इसलिए उसने मडीना को ये टास्क दिया था। लेकिन सर, आपने मुझे क्यों चुना? मैं जानता हूँ कि तुम इंटेलिजेंट हो और मैं तुम्हारी स्किल्स को टेस्ट करना चाहता था। मेरे रिटायरमेंट के बाद क्रिस और उसके पार्टनर तुम्हें ही इंटरनेशनल क्रिमिनल्स वगैरह की रिपोर्ट देंगे। उन टिप्स की मदद से तुम डिपार्टमेंट में बहुत तरक्की करोगी। मैं चाहता हूँ कि एक दिन तुम भी मेरी तरह एक अच्छी पोजीशन पर आओ। अब मडीना पूछती है कि क्रिस गोल्डी से जेल में मिला था, लेकिन क्रिस जो कि एक ऑटिस्टिक आदमी था वो जेल कैसे गया? क्रिस की माँ बचपन में उसको छोड़कर चली गई और उसने दूसरी शादी कर ली। उसके 2 बेटे हुए। कुछ साल के बाद वो चल बसी। उसके फ्यूनरल पर जब क्रिस और उसके पापा पहुंचे तो माँ के सेकंड हस्बैंड ने उन्हें बाहर निकालना चाहा। इस बात पर क्रिस उससे भिड़ गया। उसके पास गन देखकर पुलिस ने उसको पकड़ लिया और क्रिस का गन गलती से चल गया। गोली उसके पापा को लगी और वो मर गए। इस वजह से उसे अरेस्ट करके कुछ वक्त के लिए जेल में रखा गया था। वहाँ उसकी मुलाकात गोल्डी से हुई और दोनों की दोस्ती हो गई और फिर गोल्डी की मौत का बदला लेने के लिए ही क्रिस ने उस गैंग के 15 आदमियों को मार डाला। यहाँ क्रिस पूरे मिलिट्री यूनिफॉर्म में गन्स, बॉम्ब्स वगैरह लेकर लामर को खत्म करने आया हुआ है। वो हिटमैन गैंग के हर आदमी को चुन चुन कर शूट करता है। बाहर के सारे आदमियों को मारकर वो आगे बढ़ता है। अंदर से कुछ हिटमैन बाहर आते हैं। क्रिस हर तरफ से उन पर शूट करता है और शानदार गन फाइट भी होती है। इस तरह सभी को खत्म करके वो
अंदर आता है। अंदर एक और हिटमैन उसको खूब मारता है। तभी क्रिस एक बॉम्ब निकालकर उस आदमी के बुलेट प्रूफ जैकेट में घुसा देता है और उसे कसकर पकड़ लेता है। एन वक्त पर उसको छोड़ देता है और बॉम्ब के फटने से वो आदमी उड़ जाता है। इसी बीच क्रिस को भी छोटी मोटी चोट आती है, लेकिन वो जिंदा है। अब अंदर सिर्फ लामर और हिटमैन गैंग का लीडर बचे हुए हैं। क्रिस ने हिटमैन के सारे आदमियों को मार डाला, लेकिन हिटमैन गुस्सा होने की बजाय चौंक कर क्रिस को देखता है। अब हिटमैन गन लेकर बाहर आता है, लेकिन क्रिस को शूट नहीं करता। क्रिस भी मुड़कर उसको देख लेता है, लेकिन अपनी गन नीचे करके पूछता है, कैसे हो मेरे भाई? ये क्या ट्विस्ट है? दरअसल ये हिटमैन क्रिस का सगा भाई ब्रैंडन है। माँ के फ्यूनरल के बाद क्रिस जेल चला गया और उसके बाद 8 सालों तक दोनों एक दूसरे से मिले नहीं। अब ब्रैंडन क्रिस के साथ भिड़ जाता है कि अगर तुम्हें माँ के फ्यूनरल में जाना ही था तो मुझे बुला लेते, पापा को क्यों लेके गए? तुम्हारी वजह से वो मर गए। दोनों एक दूसरे को खूब पीटते हैं, लेकिन शूट नहीं करते। फिर दोनों आराम से बैठकर एक दूसरे से माफी मांगते हैं और पापा के बारे में बात करने लगते हैं। इन्हें सीसीटीवी पर देखकर लामर चिढ़ जाता है कि ये हो क्या रहा है। वो ब्रैंडन से कहता है कि अभी इसे शूट करो, लेकिन अचानक क्रिस लामर के माथे पर शूट करके उसे स्पॉट आउट कर देता है। फिर काम तमाम करके क्रिस वहां से निकलता है। ब्रैंडन पूछता है कि हम दोबारा कब और कहाँ मिलेंगे। क्रिस बताता है कि तुम जहाँ भी जाओगे 1 हफ्ते बाद मैं तुम्हें वहां मिल जाऊंगा। यहाँ सीन कट होता है और मडीना को दिखाते हैं। अब क्रिस के पार्टनर लिविंग रोबोटिक्स की केस डिटेल्स रेमंड को नहीं बल्कि मडीना को देती है। वो लिविंग रोबोटिक्स में हो रहे अकाउंट्स घोटाले के बारे में सारी डिटेल्स को देती है। यहाँ प्रेसमेंट में रेमंड मडीना को आगे कर देता है कि आज से यही आपको रिपोर्ट देगी। रिपोर्टर्स पूछते हैं कि आपने लिविंग रोबोटिक्स के फ्रॉड का पता कैसे लगाया? मडीना भी अपने गुरु रेमंड की तरह एकदम डिप्लोमेटिक जवाब देती है कि ये सब मैंने अकेले नहीं पता लगाया, मेरी टीम एफर्ट है। यानी टीम से उसका मतलब है क्रिस और उसकी लेडी पार्टनर। अगले सीन में उस हॉस्पिटल को दिखाते हैं जिसे क्रिस अपनी कमाई का 90% डोनेट करता है। ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पर क्रिस के पेरेंट्स उसे बचपन में लेके गए थे। यहाँ क्रिस की तरह एक और ऑटिस्टिक लड़की थी जिसने उस दिन पजल सॉल्व करने में क्रिस की मदद की थी। यही क्रिस की पार्टनर है जो घर बैठे बैठे FBI को क्रिस के क्लाइंट्स की टिप्स देती रहती है। इतना ही नहीं, ये कंप्यूटर एक्सपर्ट भी है। ये उसी न्यूरोलॉजिस्ट की बेटी है जिसने बचपन में क्रिस का ट्रीटमेंट किया था। दूसरी ओर डियाना क्रिस के गैरेज में जाती है, लेकिन वहाँ ना तो क्रिस होता है और ना ही उसका कैरवन। फिर वो क्रिस के घर जाती है और बुलेट से हुए छेदों को सील करती है। तभी एक कुरियर आता है जिसमें एक फेमस पेंटिंग होती है, लेकिन उसको देखते ही डियाना पहचान जाती है कि यह नकली है। वो उसे फाड़ती है तो उसके अंदर असली पेंटिंग होती है जिसकी कीमत है 400 करोड़। ये देखकर तो डियाना की सांस ही रुक जाती है। दरअसल क्रिस ने डियाना के लिए ये पेंटिंग भेजी है। वो जानता है कि डियाना उसको ढूंढती भी आएगी। आखिरी सीन में क्रिस इस शहर में अपना काम पूरा करके दूसरे शहर की ओर निकल रहा होता है। वहाँ वो एक नए अकाउंटिंग फर्म के साथ एक नई शुरुआत करेगा। इस अकाउंटेंट का खतरनाक और इंटेलिजेंट गेम चलता ही रहेगा और इसी के साथ ये मूवी होती है खत्म। तो दोस्तों कैसी लगी आप